दोस्तों आ गए हम वुडू मार्केट फेटिश मार्केट में और टूर अपना शुरू करते हैं। हालांकि एंट्रेंस फीस 3000 थी, 2000 फीस थी फोटोग्राफी की, लेकिन मैंने दिए 15000 और ये तो 25000 मांग रहे थे। बोले कि फोटो बनाओगे, इंटरव्यू करोगे और पैसे दो बड़ी मुश्किल से मनाया भाई। In the market you have a two type of explanation. Okay. First are concerned the animal diet out. After we will go inside there to see the voodoo priest there. Okay. Different fetish, different voodoo inside. Why we are called this place the fetish market. Okay. So here you have a lot of animal diet. We are using it for traditional medicine. Traditional medicine. Yes. And how did these animals die? ये देखो भाई तरह तरह के मरे हुए जानवर है. Which animal is this? Dog is a domestic Dog. ये भाई कुत्ता है मरा हुआ. Did they die naturally or were they killed? Lot of them must die naturally. Naturally. Yes. Okay. And some of them were killed also. As sometimes, for example, the dog there, Yeah. people are killing. Better Okay. of animals here Yeah. for forest animals. Okay. When they are dead. Yeah. And this is which animal is this? It's a small leopard. Okay. ये भाई शायद fox है मेरे ख्याल से. This is crocodile, right? Crocodile, yes. And this is Small vulture. vulture. Okay. And turtle. Yeah, turtle. भाई ये देखो baboon. This is baboon. बंदर, कुत्ता, कछुआ, घड़ियाल, सांप. भाई देखना तरह तरह के जानवर. There is a bird owl. The bird owl here. Owl. Yes, owl. उल्लू भाई ये मेरे हाथ में उल्लू है मरा हुआ. The bird owl, the voodoo priests are using to compose a product against the witchcraft. Okay. Black magic. Against the black magic. What does it do? What does it do? If the priest want to make one medicine or one product, Okay. for example, he advise you to buy the bird owl. You buy it, you go to see him. He will add another leaves, another herbs. Okay. Then pronounce the spiritual talk to activate. Okay. Okay. After this one, he will burn it on a fire to have one powder. This powder you can use it with alcohol Okay. to drink, or water to drink, or to take bath. Sometimes it's a scarification on the body, and then put the product inside the body. Okay. They burn it. They make a powder of it, and then they use it as medicine. Yes. The voodoo priest want to make this voodoo. Yeah. He must use the head of domestic dogs Okay. and different animals like leopard, hyena, lion, Okay. Tiger, different ferocious animals. Okay. The head of the dog. Do they make a powder of it as well? Yes. They crush it and make a powder. And what do they do of the powder? This powder, you will mix it. You will add another leaves again. Herbs. Another leaves to the powder. Okay. Yeah. Another leaves, herbs, and then mix this powder with clay. With clay. ये जो इन्होंने कुत्ते का चेहरा था ना, अब ये चेहरा ले लिया. चेहरे को करते हैं ये क्रश. जो प्रीस्ट होता है, काले जादू का जो प्रीस्ट होता है, वुडू प्रीस्ट के पास जाते हैं, वो इसे क्रश करता है. इसमें कुछ और ये ना इनके पत्ते मिलाते हैं, तरह तरह की इनकी हर्ब्स है, चीज़ें कि भी इसके पत्ते इस चीज़ के लिए काम करते हैं. पत्ते मिला के उसका पाउडर बनाते हैं और वो पाउडर यूज़ होता है तरह तरह की चीज़ों में. जैसे कि इसने आउल बताया, आउल जो कि उल्लू है, उल्लू लिया. अब उल्लू मरा हुआ है, मरे हुए उल्लू को क्रश कर लिया, कूट लिया बिल्कुल. उसके अंदर कुछ और लीव्स मिलाए और वो लीव्स मिलाए बाद जो पाउडर बना, उल्लू का पाउडर अगर आपने दारू अल्कोहल के साथ पी लिया या फिर शहद में मिला के पी लिया या फिर उल्लू के पाउडर के साथ आप नहा लिए तो आपके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं कर सकता, ऐसा इधर माना जाता है. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रोकोडाइल हेड? The head and then the skin of the crocodile. ओके. For example, if the person, the fire burn the person. कोई इंसान अगर जल गया तो जले हुए इंसान पे क्रोकोडाइल की चमड़ी या फिर हेड का जो पाउडर है वो लगा के यूज किया जाता है, उसका जो बर्न हुआ है उसको ठीक करने के लिए. The skin cancer. स्किन कैंसर. Yes. कैन इट बी ट्रीटेड स्किन कैंसर Yes. बाय क्रोकोडाइल? ओके. स्किन कैंसर के लिए भाई इनका मानना है कि भी क्रोकोडाइल की खाल से या फिर इसके चेहरे से इसको कूट के इसका पाउडर बना के आप स्किन पे लगा लोगे तो आपका स्किन कैंसर ठीक हो जाएगा. और ये कौन सा जानवर है? विच एनिमल इज दिस? दिस वन हाइना. ये भाई हाइना का चेहरा. भाई कोई भी जानवर देख लो यहाँ पे, तरह तरह के जानवर और बाल, उनके पूंछ के बाल, कोई कहीं के बाल, सींग, देखना भाई अजीब सा है बहुत ज़्यादा. ये यहाँ के भाई लोकल लोग हैं जो दवाइयाँ खरीदने आए वुडू मार्केट से. ये इस तरह के जानवरों के चेहरे, मुंह, खाल खरीदते हैं जिनसे अपना इलाज करते हैं तरह तरह की बीमारियों का. If it rains and then they strike on the sky. Oh, thunderstorm. Yeah. So according to the tradition, this god, the god of thunder, are sent
this stone to fight enemies or people who are used the black magic. This stone, they use it protect against the black magic. Okay. But it's to cure the rheumatism again, articulation pain. If you Okay. have articulation pain, you have this stone, you have to put it on the water, you take bath. After you pass the stone on your body. किसी की आर्टरीज में जोड़ों में दर्द हो तो पानी में ये पत्थर रगड़ के मिला के उस पानी से नहा लोगे तो आपके शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ये बेसिकली सिर्फ मरे हुए जानवर नहीं है, ये इनके लिए एक फार्मेसी है, ट्रेडिशनल फार्मेसी, जिन चीज़ों का ये लोग यूज़ करते हैं अपना इलाज करने के लिए। डोंट यू गो टू लाइक रेगुलर फार्मेसिस्ट टू बाई मेडिसिन, लाइक इफ यू हैव फीवर डोंट यू गो टू नॉर्मल फार्मेसी टू बाई मेडिसिन? Nowadays, the Yeah. hospital is the first. Hospital is first. Okay. So if you get sickness, you come and then the voodoo priest check. Okay. He consult if it is a natural stone, natural sickness. Okay. He will told you to go to the hospital. Okay. But if it is a spiritual sickness, Yeah. he will help you with the Okay. voodoo and then this ingredient. या गॉट इट। जैसा मेरे गाइड ने बताया, यहाँ पे किसी के कोई भी बीमारी होगी तो पहले वुडू प्रीस्ट आके देखेगा, वो बोलेगा कि भी वो चेक करेगा। अगर उसे लगता है कि कोई नेचुरल सिकनेस है, जैसे कि बीमार हो रखा है, पेट खराब है, कोई भी दिक्कत है, तो बोलेगा आप हॉस्पिटल जाओ। लेकिन अगर उसे लगता है कि ये स्पिरिचुअल सिकनेस है, कि किसी ने इस पर काला जादू कर दिया या वुडू कर दिया, तो बोलेगा हॉस्पिटल मत जाओ, इस चीज़ का इलाज मैं करूँगा। फिर वुडू प्रीस्ट इन मरे हुए जानवरों की मुर्दा लाश से जो खाल उतारी हुई होती है, इनके चेहरे, हड्डियाँ, उनका इस्तेमाल करके लोगों का इलाज किया जाता है। I show you this doll in the market. दिस डॉल Yes, in this इन market. हॉलीवुड मूवीज दे पुट अ पिन ऑन इट Mm. like this Yes. nail, they put these nails on it in Hollywood. Yeah, well, in Hollywood. In Hollywood. In Hollywood, But yes. does it actually work? Is it true? It's not true. It's not true. Yes. Okay. Okay. This doll in the market is just for souvenirs, decoration. Oh, okay. It's not activate. But if we go to see the voodoo priest, you will see the similar doll like that. But for there is the activate to protect all the family, bring a good luck for all the family. But Okay. here is not activate. Yeah. The nail on the body are represent the land gods. Land god. Yes, you have a lot god, but he's in a four group. Okay. Land like a earth. Earth. Okay. Okay. And then air god, fire god, and then water or sea god. Even in Hinduism, in India, we have water god, fire god, earth god. We have similar gods as well. Similar Yeah, yeah. ये जो आप भाई डॉल देख रहे हो ना, आपने देखा होगा हॉलीवुड की पिक्चरों में या फिर इवन बॉलीवुड पिक्चरों में भी, काले जादू के तौर पे या किसी को अपने वश में करने के लिए इसमें ये ना कील चुभाते हैं इस डॉल को। आपने देख रहा हो कितनी कीलें लगी हुई है। लेकिन वुडू में या असली ब्लैक मैजिक में इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लोग सोचते ना कि इसके एक ऐसे कील चुबा दी तो वो दर्द में तड़पेगा, वो मर जाएगा, जितनी कीलें चुबा दी उतना काला जादू उस पर हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सोवेनियर के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस से लोग सोचते हैं कि भी ऐसे ही होता है काला जादू, लेकिन इसका काले जादू से कुछ भी लेना देना नहीं है। But the spirit who people are used या to do a bad things Yeah. is not a voodoo. Okay. It's a black magic. We call it Azé in our language. The Oh. witchcraft. Azé is different than the voodoo. The voodoo is only for good things, to Okay. protect, to cure people who are get sickness, Yeah. and then to prosper in your life or in your business. या ओके। इज दिस अ राइनो? व्हाट इज दिस? This one Yeah. is a watchhog. वॉच हॉग। Bush ओ या pig. ये भाई वॉच हॉग जो जंगली सुअर होता है ना, जंगली सुअर है ये। The starfish there. Starfish. And the chameleon died. हम्म, So the voodoo priests are use it for a good luck product. ये है मरी हुई छिपकली या कैमेलियन कह लो, और इसे यूज़ किया जाता है एज गुड लक। ये मतलब ये अगर आपके पास है तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेके आएंगी, यानी कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आप पैसे कमाओगे, थ्राइव करोगे, ग्रो करोगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टारफिश? Starfish is the same thing for good luck, prosperity, for Okay. selling. आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि भी ये जानवर यहाँ पे आते कैसे, इतने जानवर इकट्ठे कैसे करते हैं, क्या इन्हें मारा जाता है फिर ये मरे हुए आते हैं? तो जैसा भाई ने बताया कि काफ़ी जानवर ऑलरेडी जैसे जंगल में मर गए तो उनकी लाशों को लोग उठा लाते हैं, लेकिन काफ़ी जानवर ऐसा भी है कि कुत्ता है किसी ने मार दिया और फिर उसको यूज़ किया जा रहा है वुडू के लिए या ब्लैक मैजिक के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता नेचुरली मरे हो या फिर जान करके भी उन्हें मारा गया हो। ये भाई अजगर लग रहा है मेरे को तो। The skin of big python. बिग पाइथन, सॉरी, पाइथन की खाल है भाई ये, केचुड़ी देख लो भाई कितनी लंबी, और यूं रख रखी है। इफ आई वांट टू बाय दिस, हाउ मच वुड दिस बी फॉर? इफ आई बाय दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस?
Like example. I'm not the seller. You're not the seller, you're just a guide. Okay. In general, how much do these things cost? Let's say, like approximately in Sefa, let's say I want to buy owl. They have a different price, depend to the things you choose. Okay. Okay, for example, the shell of tortoise Yeah. is something like 5,000 sefa. The head of the dog is a 10,000 sefa. ओके तो जैसा मैंने इससे रेट पूछा भाई, मेरे को मान लो कछुए का शेल खरीदना है, फिर कुत्ते का मुंह खरीदना है, या फिर मगरमच्छ का मुंह खरीदना है, तो मैं रेट पूछ रहा था। तो कुत्ते का मुंह का इसने रेट बताया 10,000 सेफा, यानी कि इंडिया के 1400 रुपये में आप एक मरे हुए कुत्ते का मुंह खरीद सकते हो। और कछुए का शेल आप खरीद सकते हो 5,000 सेफा, यानी कि इंडिया के 700 रुपये में आप एक कछुए का शेल खरीद सकते हो। इंडिया के लगभग 1400 रुपये में एक मुर्दा कुत्ते का पूरा मुंह खरीद सकते हो। एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच फॉर द क्रोकोडाइल? Depend to the size. The size. The size. Let's say a But, big one. The price, the big one, for example, you can buy it like 100,000 sefa. 100,000. Okay. Yes. And small one? The small one you can buy like 25. Okay. तो भाई अगर मगरमच्छ के चेहरे की बात करें तो आप मान लो कि भी इंडिया के 3,000 रुपये से लेके इंडिया के 15,000 रुपये के बीच में आपको मगरमच्छ का चेहरा मिल जाएगा पूरा। अब जितना महंगा है उतनी ज़्यादा उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होंगे। जितनी बड़ी बीमारी है इलाज भी उतना महंगा है। इलाज महंगा कैसे होगा? जानवर जो जितने महंगे हैं उनकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उस हिसाब से उनके रेट लगे हुए हैं। दिस इज़ द फाउंडर ऑफ दिस मार्केट। व्हाट्स हिज नेम? His name is Azondo. जोंदो। Azondo or Beazonsi. बेयजोंसी इस मार्केट के जो फाउंडर है, ये उनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है मार्केट के बीचों बीच। ही इज अवे ऑल्सो, राइट? ही इज नॉट अवे? All people who are working in this place is from Benin. दे आर फ्रॉम बेनिन, नॉट फ्रॉम टोगो। No. व्हाई? The Benin and Togo is a one country before. ओह ओके। After the World War, या they have the this was French Togoland. Yes. This became Togo. In Benin they are more open. They don't consider it as a taboo. In Benin people openly follow and talk about black magic or voodoo in Benin. Yes. But in Togo people do not talk about it a lot. They keep it to themselves, right? yes. Like openly people don't do a lot. Yes. Yeah. Yes. I can say the half of the population Yeah. celebrate voodoo, but inside. Yeah. Okay. In closed doors. In closed doors, yes. Yeah. So you're saying half of the population of Togo practices voodoo or black magic, Yeah. but they do not do it openly Yes, outside. yes. Yeah. But I want to explain something. Yeah. The black magic is Yeah. different than the voodoo. Yeah. Voodoo. Yeah. Yes. Voodoo is a good thing. Voodoo is a spiritual thing that helps you heal from sickness, illness, right? Yes. And it's used as a pharmacy. A voodoo market is used as a pharmacy. That's Yes, what you're trying to say. Yes. Okay. And black magic is to harm other people? People who use the black magic, I cannot talk about that. The voodoo is to against the black magic. Oh, okay. Okay. The voodoo don't like the black magic. तो भाई ने काले जादू के बारे में तो मेरे से खुल के बात नहीं करी, क्योंकि काले जादू आप समझ ही रहे हो, किसी को अपने वश में करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, वो सब चीज़। लेकिन वुडू जो है, वुडू इज यूज्ड अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, कि कोई आपको अपने वश में ना कर सके, आप पे काबू ना पा सके, आपका नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए वुडू को यूज़ किया जाता है। और आपके शरीर में कोई बीमारी है, इलनेस है, सिकनेस है, उसको हील करने के लिए वुडू यूज़ किया जाता है इन जानवरों के थ्रू। लेकिन वुडू ऐसा तो है नहीं भाई, ठीक है, जैसे कहने लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ है वुडू, तो ब्लैक मैजिक बुरी चीज़ है, वुडू बहुत अच्छी है। पर वुडू में भी तो आप जानवरों की खाल, मुंह, क्या क्या चीज़ें लेने लगी रहे हो। तो चलो, लेकिन इनका कल्चर है, ये स्पिरिचुअली किस चीज़ में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। इनके देश में इन्हीं की जगह पे आगे अपन इनको अच्छा बुरा साबित नहीं कर सकते। ये जो भी सोचते हैं चलो अच्छा है इनके लिए, कोई चीज़ काम कर रही है तो अपन उसके बारे में क्या आ गए। Okay, here we have the representation of Legba God, because the voodoo is our grandfather, our ancestor. Voodoo is your ancestor, is like your grandfather. Yes. Okay. You're right. And then this statue I represent the Legba God. The Legba God, he is a messenger into the big God, and then the rest of the divinity. He is a protector God, and then fertility God again. If we do the ceremonies of this God, you have someone in trance who must represent the spirits. Okay, the person must dress it like this, and then hold the penis for dancing. The penis is a wood who the person use for dancing. So people do this Yes. in reality, In reality. and they hold their actual penis like this, Yeah. but other people can see it. It's not a real penis the person use. It's Okay. a wood. The wood. ओके। तो ये इनके भाई कल्चर में माना जाता है फर्टिलिटी का भगवान, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि
रिप्रोडक्शन कह लो, और ये इनके हाथ में एक वुडन पेनिस है। कह रहे थे कि भाई ये असली नहीं है वुडन पेनिस के, हम आपको अभी दिखाएंगे अभी सैंपल्स। ये भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखो आप कितने सारे जिस तरह मगरमच्छियों की यूँ लटका रखे उल्टे, इनकी खाल, और ये जिस तरह काले जादू की डॉल्स, और ये मगरमच्छ की खाल, पूरे मगरमच्छ जानवर, बबून, बंदर, कुत्ते का चेहरा, पता नहीं कैसे कैसे जानवरों के चेहरे। ये क्या चीज़ है? ये घोड़ा है क्या? व्हाट इज दिस? Horse. दिस इज हॉर्स। Yes. एंड व्हाट इज हॉर्स यूज्ड फॉर? It's for lot things. लॉट ऑफ थिंग्स। Lot things. If you the priest want to make voodoo again, he use it. तो भाई ये है घोड़े का चेहरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। घोड़े के चेहरे को धरती के नीचे दफनाया जाता है गड्ढा खोद के। घोड़े का ये जो स्कल आप देख रहे हो, हेड देख रहे हो, और साथ में कुछ और चीज़ें डाली जाती है, कुछ और इंग्रेडिएंट्स। कैन यू नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट यू ऐड विद द हेड ऑफ द लाइक द स्कल ऑफ द हॉर्स? Head of baboon, हेड ऑफ बबून, ferocious animals like a leopard, लेपर्ड। a lion. तो भाई ये धरती के नीचे जैसे घोड़े का चेहरा होया, बबून का होया, लेपर्ड का होया, धरती खोद के उधर आप नीचे से दफना दो, कुछ और इंग्रेडिएंट साथ में इनके पत्ते वत्ते डाल के। अब उधर गया, उधर एक स्पिरिट फॉर्म हो जाएगी, जो स्पिरिट आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपको बचाएगी। वुडू फॉर्म करने के लिए इन चेहरों का, इन स्कल्स का, मरे हुए जानवरों का यूज़ किया जाता है। ये दिस इज अ वाइल्ड हॉग एज वेल। ये भाई जंगली सूअर है, जंगली सूअर। एंड दिस इज अ डियर, Antelopes. एंटीलोप। ओके ओके, या antelope by crocodile. And what hair are these? These hair, are these from a cow? These are cow hair? This one is from buffalo. Buffalo. And this one is from cow. Okay. The cow tail, people are using it for dancing. For dancing. Okay. ये भाई नाचने के लिए गाय के बाल यूज़ किए जाते हैं, और ये है भैंस के बाल। और स्पिरिट को कमांड करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए भी ये गाय के बालों की जो इन्होंने झाड़ू सी बना रखी है, इसे हिला के, मतलब जो भी आत्मा है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस दुकान में अंदर कई तरह के जानवर है, आपको कितने दिखाऊं समझ में नहीं आने लग रहा, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये भाई घोड़े का चेहरा था, मैंने उठाया था, अभी वापस रख रहे हैं भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही, पता नहीं कितनी तरह के जानवर है इधर। Sometimes some people are wear the mask to be in contact with the spirit. But here in this market, all this mask is for souvenirs decoration. Okay. It's not for voodoo. Okay. So like for Akan, Ewe and all these Yes. groups in Africa. Okay. ये भाई तरह तरह के मुकुट है, मास्क है, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को दर्शाते हैं अफ्रीका के, जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कुछ लोग आत्माओं के साथ बात करने के लिए भी इन मास्क को पहनते हैं, स्पिरिट से बात करने के लिए। व्हाट इज दिस? Iron God आयरन गॉड। is the god of war and justice. So here every November we do ceremonies, we kill different animals, we give the blood to him like a sacrifice. Oh, This is his representation there. The statue who have one leg. the statue who have one leg. Okay. One leg here. This statue. Okay, is the representation, and then the real one here. The real one. We do ceremonies. We kill different animals like a cow, fowl, chicken, goat. We give the blood to him like a sacrifice. After we cook the meat of the animals, every person eats, and then we throw the head bone of the animals on the voodoo. You will see the head bone there. ये भाई राइट में तो है खबिसु, जो कि थंडर का गॉड है इनका, बारिश होने के लिए या फिर थंडर के लिए इस गॉड की पूजा करते हैं। ये जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये है इनका आयरन गॉड। इधर आपको पहली बात एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा लोहा दिख रहा होगा, यानी कि आयरन, जिसे ये गू बोलते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लाल खून दिख रहा होगा खूब सारा, ये लाल खून क्या है? तो ये भाई तरह तरह जानवरों की बलि देते हैं, इस भगवान के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, ऐसे जानवरों को मारते हैं, इस पे डालते हैं और मारते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसका जो मांस होता है वो मांस तो ये लोग खा लेते हैं सारे, और जो उसका चेहरा होता है, स्कल होता है, वो वापस इसमें जो इनका आयरन गॉड है इसमें फेंक दिया जाता है। इधर जो भी गाय या फिर बकरी इन्होंने मारा, आप देख सकते हो कुछ चेहरे आपको दिख रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से जो स्कल्स है, छोटे जानवरों के स्कल्स लग रहे हैं मेरे को। तो गाय का स्कल अभी फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा, शायद इन्होंने उठा लिया, और अच्छा ही है ना दिखे तो। ये जो है मेरे ख्याल बंदरों के स्कल्स इधर दिख रहे हैं, जिन्होंने मार के इस भगवान पे बलि चढ़ाया इधर। ये भाई कुछ और मुकुट है, मास्क है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं के साथ बात करने के लिए। तरह तरह के यहाँ पे मास्क है, जिसको पहन के प्रीस्ट या फिर जिसे भी वुडू करना है या काला जादू करना है, इन मास्क को पहन के आत्माओं के साथ, स्पिरिट्स के साथ बातें की जाती है। निकलते हैं भाई इधर से बाहर।